हाय फ्रेंड्स, आई एम के एस चौधरी। यहाँ हम बात करेंगे लॉट ऑफ स्टूडेंट टोल्ड मी, बहुत स्टूडेंट ने कहा सर ये टेंसेस आई एम कंफ्यूजिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू। वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड, राइट, एंड इट विल बी टू मच गुड। अब हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि यार ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है। अब आप पहचानेंगे तभी तो उसमें वर्ब लगाएंगे। तो वी रिकॉग्नाइज फ्रॉम एडवर्ब्स, जस्ट, already, recently, so far, ever, hardly, and yet. Just means अभी, right? मैं अभी अभी आया हूं, I have just come. या हम चुका हूं, आ चुका हूं, I have just come, right? Already, मैंने पहले से ही लिख लिया, I have already written. Already लगाएंगे। वहां recently, I have settled in Kota recently. Recently means हिंदी में हम बोलते हैं हाल ही में। That time we use recently. So far, it is very important, right? अभी तक, my father has not come so far, right? हाँ, मैंने डिनर नहीं लिया अभी तक। I have not taken dinner so far. I have not taken dinner so far. Here ever, ever I think use in a comment style. कभी, कभी दिल्ली गए हो? Ever gone to Delhi? दो तरीके से, कभी दिल्ली गए हो, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? Have you ever gone to Delhi? Let me discuss later. Next, hardly. Hardly means मुश्किल से. Hardly I have come here. मुश्किल से यहाँ पहुंचा. In this way, yet my result has not come yet. मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, etc. अब here ये एडवर्ब्स आपके क्लियर हो गए। अभी, पहले ही, हाल ही में, अभी तक, कभी, मुश्किल से और भी, राइट। अब यहां लेट वी टॉक अबाउट द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैसे बनाना है आपको? फर्स्ट सब्जेक्ट, हैज, हैव, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। अब आप सर पूछेंगे कि हैज कहां यूज करना है और हैव कहां यूज करना है। हैज वी हैव टू यूज इन ए सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है, जैसे ही, शी, इट, रुचि, अ बॉय, अ गर्ल, राइट, अ बॉय, अ गर्ल, right, my mother, my father, my uncle, these are singular subject। और have कहां यूज करना है? have you have to use with the plural subject। they, you, we, the players, the boys, some teachers, some girls। तो ये क्या है? सब क्या है? प्यूरल। तो इनके साथ में आपको क्या यूज करना है? have। क्लियर इट इज। फर्स्ट स्ट्रक्चर यू में सी एडवर्ब आपको दिख रहे हैं, यू हैव टू सी द एडवर्ब्स, just, already, recently, so far, ever, hardly, and yet. These are the adverbs, right? Simple sentence structure, subject, has, have, and main verb third form. Main verb third form we use, and has you have to use with singular subject, and have you have to use with plural subject. Then object, then extension. Extension, you know, वाक्यांश, वाक्य का अंश, at home, in the market, right? Yes, in the class, in the school. These are the extension. अब आपको बता दिया आपको has कहाँ यूज करना है। You have to use has, he, she, it, रुचि, राम, रहीम, एक नाम होता। और have you have to use plural number। राम एंड रहीम दो हो गए। have come, right? they, you, we, players, the boys, some boys। here it is, right? now we will learn that next structure। फिर उसके बाद में after that we will do example। second structure will be negative also very negative sentence structure। it is very easy। negative sentence structure, it is very easy। negative, right? first subject, has, have, right? then not, after it main verb, mv। in short main verb हम write करते हैं, we will write down
okay, you have to write, you can understand MB means third form. After it, object or extension, right? Yes, in this way, he has not ever, right? And next we will that इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं फर्स्ट वी दैट, आफ्टर दैट उसके बाद में हम जो एग्जांपल करके मैं आपको बताऊंगा. यहां पर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. फर्स्ट कम हैज और हैव. आपको हैज का जो एच है यू हैव टू राइट कैपिटल लिखना है उसमें, right? And then subject plus main verb third form, right? Then object or and we have to write extension, right? Don't forget to apply question mark. यदि आप इसमें question mark नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. Totally wrong now, right? You have to apply question mark properly. क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, राइट? यस, यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क. तो ये आपके हो गया इंट्रोगेटिव. अब आप बोलेंगे हाँ, और अब आप बोले सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आपने तो बताया नहीं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट फोर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. नेगेटिव, right? First you have to use same, has and have. Then subject, और आपको not हमेशा मोस्टली sentences we use not after subject. इंट्रोगेटिव not, then main verb third form, right? Object and extension, right? Yes, and question mark. तो you have seen the structure. यहां हमने स्ट्रक्चर में सिंपल पहले बताया था, subject has a plain verb third form, object extension. यहाँ नेगेटिव you are seeing now, subject has have not, main verb third form, object and extension. अब कमेंट में आपको you have to say now where we have to use has and where we have to use have. कहाँ has लगाना है, कहाँ have लगाना है. Please present in comments, right? Then interrogative sentence. Has, have, subject, main verb third form, object and extension, right? Has, have आगे लगाना है, helping verb, right? Next interrogative. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको has, have, subject, not, main verb third form, object और extension, right? अब हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले जो है मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा था, तो सिंपल सेंटेंस से फर्स्ट वी कैन से आप जो है वो नेगेटिव का देखिए. मैंने खाना नहीं खाया, राइट? मैंने खाना नहीं खाया. आई हैव नॉट, ओके, टेकन डिनर. आई हैव नॉट टेकन डिनर. अब इसमें सो फार, अभी तक नहीं खाया, तो वी हैव टू अप्लाई हियर सो फार. इट इज अ नेगेटिव, राइट? वी कैन से दैट. नेक्स्ट, ये तो नेगेटिव हो गया. तो अभी आप पूछ रहे हैं क्या आपने खाना नहीं खाया, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, राइट? तो इंट्रोगेटिव आपको कैसे बनाना है, जस्ट लाइक दैट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये. इंट्रोगेटिव में आपको लिखना है हैव यू टेकन डिनर. हैव यू टेकन डिनर, ये बनेगा इसके अंदर. जैसे हम इंट्रोगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर ही पहले लिखा था आपके लिए. अब इसको इसका ही हमें इंट्रोगेटिव बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? हैव यू टेकन डिनर. हैव यू टेकन डिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, हैव यू टेकन डिनर. अब हमको इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है. क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तो इट विल बी इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हैव यू
not taken dinner so far, अभी तक, right? So in this way you can learn now, right? It is the negative sentence, it is interrogative और it is interrogative negative. अब सिंपल बोले, जैसे इंट्रोगेटिव, सर अभी अभी आए हैं, तो कैसे बोलेंगे? सर, सिंपल सेंटेंस, सर हैज जस्ट कम. ओके, मैंने अभी भी एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन अ सेंटेंस, राइट? हाँ, मैं अभी अभी कोटा में सेटल हुआ हूं, आई हैव रिसेंटली सेटल इन कोटा, राइट? अब हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेगेटिव कंबाइन करेंगे. आपको रिकॉग्नाइज करना है कि विच सेंटेंस इज नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, आपको पहचानना है. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल. ठीक है, मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखूंगा, तो यू ओके इन अ कमेंट यू में राइट द सेंटेंस. कमेंट में सेंटेंस भी लिखना है कि सर ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये सिंपल है, राइट? जस्ट लाइक दैट. फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव just sent message to you. मैंने अभी अभी आपको मैसेज भेजा है, तो आपको इसके पीछे लिखनी, यू हैव टू राइट, आपको लिखना है कमेंट में कि ये सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, राइट? वी कैन से हैव यू कॉल्ड मी. अब ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे फोन किया, इन दिस वे, राइट? नेक्स्ट, अब इसके बाद लिखना है आपको नेगेटिव. शी हैज नॉट watched cricket match. She has not watched cricket match. उसने क्रिकेट मैच नहीं देखा. ये आपको रिकॉग्नाइज करना है. अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर फोर्थ सेंटेंस है, राइट? we can write down here Ruchi name. Has Ruchi not flown a kite so far. अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इसमें, क्या रुचि ने अभी तक पतंग नहीं उड़ाई, राइट? ओके, हैज रुचि नॉट फ्लोन अ काइट सो फार, राइट? इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया, हैव यू नॉट टेकन फूड सो फार. क्या आपने अभी तक दिल्ली नहीं देखा, हैव यू नॉट सीन दिल्ली सो फार. क्या आप अभी तक जयपुर नहीं गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके, हैव यू नॉट गॉन टू जयपुर सो फार, राइट? तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. टेल मी नेगेटिव, गुड. दिस इज सिंपल सेंटेंस, राइट? एंड दिस वन you tell interrogative, and this one we can say negative sentence. हाँ ये आपको कमेंट्स में बताना है मुझे कि these sentences, which sentence is simple, कौन सा सिंपल है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो विल बी टू मच गुड. उसके बाद में बहुत ही अच्छी होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द so far और ever. It is very important. Ever we can say that. Ever it is used a very different way, a lots of way. बहुत अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता है. The next video will be too much good. Ever, right? Ever done this work? कभी ये काम किया है? Directly comment स्टाइल में. We speak now. So first, okay, just like that. चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है, right? Yeah. I have sent message. I have taken meeting, right? Yeah. In this tense, I as a we use as a plural. Some places I is used in a singular way and some places I use in a plural way.
कहीं पे सिंगुलर हो जाता है, कहीं पे प्लूरल होता है। इन दिस टेंस वी यूज इट इज प्लूरल वे, आई हैव, राइट, वी कैन से। ओके, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको पहचानना है, देन आपको कमेंट्स में जो है वो लिखना है, you have to write in comments also. Okay, bye, next video will be too much good. Okay, thanks.